Hello students, we understood the difference between the living and non-living. Now the chapter life processes. So we will deal one by one all the life processes like nutrition, respiration. So first topic is nutrition. So what is nutrition? सबसे पहले से समझते हैं कि nutrition क्या है. हाँ, तो न्यूट्रिशन समझने के लिए चलो पहले एक चीज़ समझते हैं, एक छोटी सी चीज़ कि देखो कोई भी चीज़ वर्क कर रही है तो वर्क जो भी वर्किंग फॉर्म में है, इवन आपका मोबाइल फ़ोन भी है तो उसको भी आप लोग चार्ज करते हो, यानी उसको भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है. जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है तभी वो वर्क कर पाता है, और जो एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो आफ्टर दैट आपका जो मोबाइल है वो डेड हो जाता है. दैट इज़ यू हैव टू चार्ज इट अगेन. सो इन द सेम वे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे यूनिसेलुलर यानी मेड ऑफ वन सेल और मल्टी सेलुलर मेड ऑफ सो मैनी सेल्स मीन्स मोर देन वन सेल, तो इट कैन बी एनी नंबर. सो even a single cell also requires the energy to work, to growth, ठीक है. and even a multicellular body यानी एक multicellular organism जो है that too also require energy to do work. Now what is the difference here in living and non-living? That non-living you are providing the energy by means of petrol, diesel, or by charging it, means any source of energy. It may be hydroelectricity or any form, or solar energy, any form. But for living cell, any living cell or any living organism, they take energy. So there are two forms which you have studied it earlier also, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So what does this mean? Autotrophic nutrition आप लोगों ने there are two basic forms, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now auto means what? Here the word auto means self. Auto means self nutrition, and hetero means होता है different, and hetero means different. So autotrophic, why these two words autotrophic and heterotrophic? So auto means self, trophy means food or nutrition. So we find two types of organisms in this world. दो तरीके के organisms हम देखते हैं, that is one which can prepare their own food, which can prepare their food themselves, and the other, and जो majority जो other आप देखते हो, that is जो अपना food जो है, those who cannot prepare their own food, but that is they are dependent for their food on others. Now autotrophic nutrition में सबसे ज़्यादा आप familiar हैं, किससे familiar हैं? That is plants से. Those who prepare means autotrophic, you can say that is autotrophic. There are two types autotrophic. There are two types, that is photosynthesis and chemosynthesis. Now I have written here two, photosynthesis and chemosynthesis. So what is photosynthesis? Again you can see that photo means light, synthesis means formation. Yani photosynthesis, you know, all of you know the definition. I think you must be knowing the definition. Photosynthesis, क्या है photosynthesis? That is plants which prepare their food
in presence of sunlight, that is photo. And what are the ingredients? What are the requirement? That is the carbon dioxide, water, ठीक है, and minerals are of course required like manganese. These all minerals are required also. And लेकिन the most important thing is this, by the chloroplast. Chloroplast क्या होते हैं? Chloroplast, you know, all of you know this. क्या होते हैं? These are the organelles found in the cell. Which cell? Plant cell. So chloroplast has the chlorophyll pigment जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं, खींचते हैं. एंड दिस सनलाइट की वजह से जो सनलाइट में जो फोटॉन्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वहाँ पर एक्साइटेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का. और उस मतलब हम आगे डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा, जितना आपकी बहुत ज़्यादा तो आपकी 10th क्लास में सिलेबस में नहीं है, तो जितना है अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से हम समझेंगे. तो उससे क्या होता है कि जैसे ही एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो जो है एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है उसमें एनर्जी जो उसके बाद वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअली में रिडक्शन होता है. तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट एक जो है फोटोसिंथेसिस में सीधे से आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल रिएक्शन होती है, अक्सर कर एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, कई बार आ जाती है. दैट इज़ जो बहुत इजी सी है, कुछ भी नहीं है उसमें. 6CO2 + 6H2O एंड हेयर यू कैन राइट जो आपके रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ सनलाइट एंड क्लोरोफिल pigment. And what is being formed, that is C6H12O6 + 6O2. So this is a gas. So you can see this is what, this is the glucose molecule. ठीक है, you can see here that is 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water. What they are forming? They are forming 1 molecule of glucose plus 6 molecules of oxygen. ठीक है. So this is the way we will understand this in more detail. So actually में you will see, चलिए समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं कि after all how this is going on. That is carbon dioxide, that is the plants get the carbon dioxide from where they get, that is जो लीफ होती है प्लांट की, उसकी जो लीफ होती है वहाँ पर they are stomata are present. तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा अगेन यू कैन सी दैट कि स्टोमेटा एक तरीके से लाइक यू कैन सी दैट इज़ you can see that is, this is what you can say, this is the actually stoma. Stoma means क्या होता है? होल. और ये क्या होते हैं? These are the guard cells. You can see that these are the guard cells. So what is that? जो लीफ होती है, लीफ के एपिडर्मिस, एपी मीन्स ऊपर, डर्मिस माने स्किन, जो आप ऊपर की स्किन देखते हो लीफ की ऊपर या नीचे, वहाँ पर क्या होता है? होल्स होते हैं. होल को जो लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज, उसमें क्या बोलते हैं? स्टोमा. और उसको ये जो होल है ये इसको रेगुलेट करने के लिए, यानी होल छोटा होना है या बड़ा होना है, बंद होना है या खुलना है, वो रेगुलेट करते हैं ये वाले सेल. ये वाले सेल्स, ये कैसे सेल्स हैं? गार्ड सेल्स हैं. और इनकी शक्ल आप देख सकते हो कैसी है, जैसे कि बीन शेप, जैसे कि राजमा होता है ना उसकी शेप होती है, उस तरह की इनकी शेप होती है.
और ये स्टोमेटा जो होते हैं ऊपर की जो लीफ की ऊपर की जो लेयर होती है वहाँ पर कम होते हैं, नीचे की साइड में ज़्यादा होते हैं। थोड़े बहुत और भी वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारा बेसिक क्या है, ये इंटेंशन नहीं है हमारा, ये कि हमें मेन चीज़ थोड़ा सा ये समझनी है कि हाउ ये जो हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है। और जो स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा में व्हेन एवर जैसे डे टाइम पे जो होता है स्टोमेटा जो एक्चुअली में जैसे जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है, तो वो ग्लूकोज फॉर्मेशन जो गार्ड सेल्स में है व्हाट हैपन हियर कि वाटर एब्जॉर्व करते हैं। तो ये गार्ड सेल की ये वाली जो स्किन होती है, सी दिस, जो ये वाली जो स्किन होती है ये पतली होती है, इलास्टिक होती है। सो इट जो ग्लूकोज है वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज़ और बड़ा हो जाता है, स्वेल करता है। तो ऐसे समझ लो कि जैसे कोई चीज़ है वो ऐसे खिंच रही है, दो मान लीजिए, कैन सी दिस, मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे दो गार्ड सेल्स हैं, ये ऐसे खींचेंगे, स्वेल होंगे, क्योंकि ये इधर से पीछे को खींचेंगे तो होल जो क्या है बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया। और रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे ड्यूरिंग नाइट रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज ग्लाइकोजन फॉर्म हो गया, जैसे स्टोर हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये गार्ड सेल्स जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मीन्स वाटर नहीं रहता है। वाटर नहीं रहता है तो क्या होता है कि ये जो जिस तरह से वो सेल पीछे को खींच रहे थे, वो जो पीछे को खींच रहे थे वो बंद हो जाता है, तो वो वापस आकर के जो होल होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी प्लांट कैन नॉट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होती है। तो आई नो दैट। सो दिस वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, यू ऑल नो दैट इज़ वाटर is absorbed by the roots of the plants, and roots of the plants कैसे absorb करती हैं, that is you know there कि root hairs होते हैं, और वो जो root hairs होते हैं तो उसमें अपने आप जो होता है, जैसे कोई जो रूट है, मान लीजिए उसका ये एक रूट हेयर है, और इसके बाद में ये यहाँ पर ये दैट इज़ ये एपिडर्मिस हम सोच सकते हैं, दैट इज़ ये एपिडर्मिस है, मान लीजिए ये एक लेयर की एपिडर्मिस हो गई। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो होते हैं कॉर्टेक्स वगैरह के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स वगैरह। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं इधर कहीं जाकर के एंडोडर्मिस होती है। देन यहाँ पर अगर हम माने तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा जो है वैस्कुलर बंडल्स, ये हम लिख सकते हैं, हम डिटेल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं। वैस्कुलर, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या होती है, जाइलम जो होते हैं ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पाइप होता है घरों में जो पानी ले जाने के लिए, जैसे पाइप होता है ना, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स की, इन द सेम वे जो रूट में जैसे जो रूट हेयर्स हैं, जैसे आप कभी भी प्लांट आप लगाते हो तो आप देखते होगे हेयर से जो स्टेम है उसके बीचों बीच नीचे की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर इधर ये वैस्कुलर बंडल के इधर सिर्फ यहाँ पे पिथ होता है, पिथ ऐसे समझ लीजिए, और ये पूरा इधर ऐसे जाइलम ऐसे रहते हैं, जैसे ये मान लीजिए ऐसे ऐसे करके इस टाइप से ये फ्लोएम हो गया, और यहाँ पर ये जाइलम हो गया, लाइक दिस, इतने एरिया में होगा, इधर फिर इधर फ्लोएम हो गया, इस टाइप से ये रहता है। तो मान लीजिए यहाँ तक वाटर जो है पहुँच जाता है बीच में, जैसे ही वो जाइलम के उसमें पहुँचता है, जैसे ही पहुँचता है जाइलम, जो कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स के बने हुए होते हैं, तो जाइलम में जैसे ही पहुँचता है, जाइलम ऐसे समझ लो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद सीधे वाटर का जो है ऊपर की तरफ सक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसकी और भी डिटेल्स हैं कि ये कैसे स्पीड अप होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है, कैसे ये सारे कारण होते हैं। तो इस तरीके से वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है, गैसेस एक्सचेंज उस तरीके से आ जाता है। स्टेम में लेंटी सेल्स होते हैं, वहाँ पर जो होते हैं तुम्हारे स्टोमेटा की जगह पे लेंटी सेल्स होते हैं। लेंटी सेल्स
स्टोमेटा आपके रात के टाइम पे जैसे क्लोज हो जाते हैं, दिन में ओपन रहते हैं, बट लेंटिसेल्स में ऐसा नहीं होता। लेंटिसेल्स आर ओपन ऑल द टाइम, हर समय ओपन रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि और जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली प्लांट को, वाटर कहाँ से मिला, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। देन द वर्क जो रह गया दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कैसे होती है। अभी चलो हम एक क्लोरोप्लास्ट भी समझ लेते हैं। तो ये जो है आपका, एक चीज़ मैं और बता दूं, चलिए अभी बाद में क्लोरोप्लास्ट का इसको रब कर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसको रब कर देते हैं। एंड व्हाट क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है और उसमें एक्चुअली में क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। आई थिंक समझ दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऐसे ही समझ लीजिए, लाइक दिस, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको समझ लीजिए लाइक ऐसे, इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट की ये जो है मेम्ब्रेन है, दिस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर, ये है मेम्ब्रेन है। और क्लोरोप्लास्ट में व्हाट इज़ देयर इन द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ जो जैसे सेल के अंदर जो सेल का पूरा अंदर जो भरा हुआ रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पूरा एक तरह से जेली लाइक या जो भी भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं लाइक आपके जैसे सिक्के जैसे होते हैं ना, इस टाइप के सिक्के टाइप के, जैसे पाइल्स ऑफ, ये जो होते हैं ग्रेना, ये लाइक दिस। ऐसे मान लीजिए हम 2-3 बना लेते हैं ये इस टाइप से। और ये ग्रेना जो होते हैं इसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे क्या है, ये ग्रेना, ग्रेना। और ये क्या है, स्ट्रोमा, दिस इज़ स्ट्रोमा। और ग्रेना जो होते हैं दे आर जो है ग्रेना मेड ऑफ स्टैक्स, STACKS, स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स। नहीं, थाइलाकॉइड्स ये मैं जो बोल रही हूँ क्या है एक्चुअली में, जो थाइलाकॉइड जो होते हैं यही, जैसे समझ लीजिए कि जैसे कटोरी के ऊपर आप जैसे कटोरी ऐसे लगाते चाहे, एक ऊपर कटोरी, फिर इसके नीचे एक और कटोरी लगी हुई है, फिर इसके नीचे एक कटोरी लगी है। तो ये जो मतलब कप या बाउल लाइक समझ लीजिए, तो इसके जो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, तो एक कटोरी जो है वो क्या है, वो है आपका दैट इज़ द थाइलाकॉइड। और ये सारे इकट्ठे मिलके क्या बना लिया, ग्रेना। अब ये जो थाइलाकॉइड्स हैं यही जो होते हैं, इन थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि यहाँ पर दे जो होते हैं, ये दिस थाइलाकॉइड, यू कैन सी दिस, दे अट्रैक्ट द सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और उससे होता है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में 2 होते हैं रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है दैट अकर्स इन ग्रेना, लाइट रिएक्शन होता है ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, देखिए वन मोर थिंग, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला देखिए स्टेप क्या रहा कि एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा जो मेन स्टेप आता है दैट इज़ लाइट रिएक्शन में ही
आपको ये लग रहा होगा अगर आप रिएक्शन हमने हटा दिया, चलो दोबारा से लिख लेते हैं रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 6CO2 प्लस 6H2O फॉर्मिंग C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारी इक्वेशन थी। तो आपको देखने में एक चीज़ आप देखो तो आपको ये लगेगा कि जैसे दो बातें आती हैं माइंड में कि ये H2O, तो यहाँ पर भी H2O जैसी कंडीशन दिख रही है H12O6, और लगेगा 6 कार्बन यहाँ से आ गए, लेकिन ये एक्चुअली में इस टाइप से नहीं है। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। आप लोग ने जो है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लास्ट ईयर भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये एक्चुअली में ये जो ऑक्सीजन आती है, आप ये देख रहे हो रिलीज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस। हम कहते हैं ना कि जो ये रिएक्शन है दैट इज़ हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि हम लोगों को, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको लेने वाला, जो एक्सेल कर रहे हैं उसको लेने वाला कौन है, उसको प्लांट्स, दे आर टेकन बाय द प्लांट्स एंड प्लांट्स आर गिविंग आउट ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। तो दिस ऑक्सीजन इज कमिंग नॉट, दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑक्सीजन इज़ कमिंग फ्रॉम वाटर, और वाटर से आती है। तो वाटर का क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है टूटता है किससे है, सनलाइट से, इसीलिए इसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। यानी इसका ये जो ब्रेकिंग होती है ना, ब्रेकिंग ऑफ H2O, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटो मीन्स सनलाइट और लिसिस माने ब्रेकिंग, ठीक है। सो दिस यू अंडरस्टैंड। जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता कि एक्चुअली में कि जो लाइट रिएक्शन है वो बिना सनलाइट के नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन जब सनलाइट है तब भी चलता है, लेकिन जो है लाइट रिएक्शन जो होता है वो डार्क में नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन का जो रॉ प्रोडक्ट है, जो इसमें एनर्जी सिंथेसिस होती है लाइट रिएक्शन में, वो ख़त्म हो जाता है, तो अपने आप ही शाम के बाद में डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाता है। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन नेमिंग का कारण ये है कि लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट एसेंशियल है, डार्क रिएक्शन जो है सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स वाई द टू नेम्स लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आई होप दैट इज़, ये आपको समझ में आ गया होगा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन और ये फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट है। एक बार थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या समझा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, उसमें हमने पहला पार्ट समझा फोटोसिंथेसिस में हमने समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है, स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज में प्लांट्स दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से आता है, वाटर इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, रूट्स they absorb the water and finally it is transported via xylem up to the leaves of the plant, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि जो ग्रीन पार्ट है फोटोसिंथेसिस तो वहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर वहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनल है, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि सनलाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइट होने से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, अंदर एक तरह का एनर्जी ट्रांसफ़र चलता है, और जैसे एनर्जी बनती है NADPH2 वो फिर CO2 को रिड्यूस करने में काम आती है। और इस तरीके से डार्क रिएक्शन में CO2 से हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है।
अब हमारा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया है, दैट इज़ द कीमोसिंथेसिस। तो कीमो मीन्स दैट इज़ इन जो इस जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फॉर दोज बैक्टीरिया दे डू नॉट रिक्वायर सनलाइट and they prepare the food by means of the certain chemicals present in their surrounding, like certain methanogens है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये भी they are also preparing their food by themselves. So we say that they are having the autotrophic mode of nutrition. तो ठीक है बच्चों, आई थिंक ये जो है ऑटोट्रॉफिक हमें न्यूट्रिशन का पार्ट समझ में आ गया. नेक्स्ट we will understand heterotrophic nutrition in detail. So thank you.